Greetings. I hope you all are doing well. And today we have come up with another very important session regarding the new developments that have taken place after the President's approval of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, Bharatiya Nyay Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, replacing CRPC, IPC, and Evidence Act, respectively. We are trying to take different provisions of these three laws, and step by step we are trying to bring clarity regarding these provisions and deliver as far as better conceptual knowledge as we can. Today we are going to take up another very important discussion regarding a very major change that has been brought about in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. It received the President's assent on the 25th of December 2023. The provision that we are going to deal with had a corresponding provision in CRPC 1973, which was section 436A. It was a part of chapter 33, that is related to bail and bonds, and it was section 436A. The corresponding provision in Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita is section 479. समझ लेते हैं कि ये 436A क्या था और अब 479 में हो क्या गया. See, 436A was a provision which was added by the 2005 amendment, which came into force on 23rd of June 2006. This was added in CRPC 1973 by the Amendment Act of 2005. 436A में प्रोवाइडेड क्या था कि मान लीजिए एक अक्यूज्ड है, मान लीजिए there is an accused person and he is on trial for an offense. He is on trial for an offense and the maximum punishment for that offense, the maximum punishment for that offense is, let us say, 10 years. The maximum punishment is 10 years. The person is arrested. The accused person is arrested at this point. And let us say the investigation continued till this point. Then the inquiry continued till this point. And till this point, the trial has continued. For whatever reasons, the time in the investigation, inquiry, and trial has been, let us say, 5 years and 2 months. Please pay very close attention to this example. 5 years and 2 months का time हो गया. That is 10 years का half कितना होगा? 5 years. 436 कैपिटल ए में ये प्रोवाइडेड है सीआरपीसी 1973 में कि यदि कोई ऑफेंडर है, कोई अक्यूज्ड व्यक्ति है, सजा सुनाई नहीं गई है, ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्रायल इज स्टिल ऑन गोइंग, अभी तक सजा नहीं सुनाई गई. द थिंग इज दैट दिस अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, यानी कि ये व्यक्ति कारावास में है और इस व्यक्ति के खिलाफ जो जांच, जो कार्यवाही पूरी होनी चाहिए वो नहीं हुई है. और कितने समय तक ये व्यक्ति कारावास में रहा है या इम्प्रिजन्ड रहा है? हाफ ऑफ, एटलीस्ट हाफ ऑफ और मोर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. तो जो पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है
उस पनिशमेंट के आधे या आधे से ज्यादा पीरियड के लिए ये अक्यूज्ड व्यक्ति ऑलरेडी जेल में बैठा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल प्रोसेस, और ट्रायल अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है, और ये व्यक्ति 5 साल और 2 महीने से जेल के अंदर ही बैठा हुआ है। देखिए उस व्यक्ति की क्या सिचुएशन होगी, उस व्यक्ति की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। Law is all about balancing of interests between the society and the individual. Do you understand the anguish, the pain this person is going through? 5 years, 2 months in jail, not even a single respite. अब तक आप देखिए इस व्यक्ति का ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और सजा 10 साल की थी। तो 436 कैपिटल ए सीआरपीसी में ये प्रोवाइडेड है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जेल के अंदर है और आधे से ज्यादा पीरियड अपनी मैक्सिमम पनिशमेंट का वो काट चुका है, तो उस व्यक्ति को बेल पर रिहा कर देना चाहिए। फिर आप 437, 436 कोई भी और ग्राउंड्स नहीं देखेंगे, आप कोई भी और ग्राउंड्स नहीं देखेंगे। अगर कोई ऐसा अंडर ट्रायल प्रिजनर है, हाफ पनिशमेंट या हाफ से ज्यादा ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट ही इज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, यू कैन रिलीज हिम ऑन बेल। हाँ, और भी कुछ कुछ उसमें फैसेट्स है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर आप सुने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आर्ग्यूमेंट्स अगर आप कन्विंस हो, तो व्यक्ति को आप फिर भी जेल के अंदर रख सकते हैं। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट। यदि अक्यूज्ड की अपनी कोई गलती की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, अगेन बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट्स, अक्यूज्ड की अपनी कोई गलती या अक्यूज्ड के अपने एक्शंस की वजह से देयर हैज बीन अननेसेसरी डिले इन द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, unnecessary delay due to the accused default, then वो पीरियड को आप एक्सक्लूड कर देंगे कि भाई 3 महीने तुम्हारी वजह से डिले हुआ है, उस 3 महीने को एक्सक्लूड करेंगे। तो ये कहां चला जाएगा? 4 साल और 11 महीने पहुंच जाएगा, मतलब आधा ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं हुआ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि 3 महीने अगर हम एक्सक्लूड करेंगे कि अक्यूज्ड के डिफॉल्ट की वजह से ये 3 महीने ट्रायल लेट हुआ है या 3 महीने का डिले आया है, तो 5 साल 2 महीने नहीं, ये 4 साल 11 महीने लिया जाएगा और आधी सजा आपकी कंप्लीट नहीं हुई, उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाए। ऑफ कोर्स, हाउ विल यू बैलेंस द इंटरेस्ट? जब अक्यूज्ड की गलती है तो बैलेंस तो बिगड़ गया ना। यहां पर अगर हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट द अक्यूज्ड हैज स्पेंट इन जेल ऑलरेडी, तो छोड़ दो। That is what the legislative intent is. You can't have the accused languishing in jail unnecessarily. Why are you doing that? It's his personal liberty. बट अगर अब अक्यूज्ड की गलती रही है तो उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडेड इन 436 कैपिटल ए ऑफ सीआरपीसी। बहुत सिंपल सा है। अब सर, ये तो बड़ा अच्छा प्रोविजन है जो कि लाया गया था अमेंडमेंट ऑफ 2005 से, तो क्या इसमें कोई चेंज आया है? एक और बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज सेक्शन 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमें देखने को मिलता है। वो क्या चेंज है? यह हाफ वाला फैक्टर तो है ही, जो मैंने आपको अभी समझाया, जो 436 कैपिटल ए में था, यानी कि अगर हाफ सजा ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट, दैट इज हाफ और मोर देन हाफ ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट द अक्यूज्ड हैज बीन एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, तो अक्यूज्ड को बेल पे छोड़ दिया जाए। बट 2 बड़े ही महत्वपूर्ण चेंजेस आए। पहला क्या चेंज है? पहला चेंज है दैट इफ अ पर्सन इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, और क्लैरिफिकेशन भी दिया है उस वहां पर, अगर आप ब्रैकेट्स में देखेंगे इन 479 बीएनएसएस 2023, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर मतलब कि उस व्यक्ति को कभी भी और कन्विक्ट नहीं करा गया है किसी और ऑफेंस के लिए। ध्यान से पढ़िएगा उसको, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तब 1/2 वाला क्राइटेरिया तो अवेलेबल होता ही है, एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया अवेलेबल है, वो है 1/3 वाला। अभी सर 1/3 वाला क्राइटेरिया क्या है? यानी कि अगर एक व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यहां पे उस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड देन ट्रायल अभी भी चल रहा है, और उस व्यक्ति को जिस ऑफेंस के लिए
उस व्यक्ति को जिस ऑफेंस के लिए हमने अरेस्ट करा था, वो ऑफेंस, मान लीजिए उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, मान लीजिए 3 साल, इट इज 3 years. द मैक्सिमम पनिशमेंट इज 3 years. तो अगर वो व्यक्ति एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो हाफ वाले क्राइटेरिया से पहले ही ये 1/3 वाला एडिशनल क्राइटेरिया उस व्यक्ति के लिए अवेलेबल है। यानी कि व्हाट इज 1/3 ऑफ 3 years? 1 year। यानी कि अगर 1 साल निकल चुका है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में, एंड दैट पर्सन, दिस अक्यूज्ड पर्सन is an under trial prisoner during this particular period. If this accused person is an under trial prisoner during this particular period of 1 year, that person should be released on bail. That person should be released on bail. फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए देखिए कितनी सही हमारे लेजिस्लेचर ने रियायत दी। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उस व्यक्ति ने कभी कोई और क्राइम नहीं करा, तो अगर 1/3 वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल करता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप रिहा कर दीजिए। अ वेरी 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 पॉजिटिव चेंज। ये जो एडिशनल 1/3 वाला क्राइटेरिया अवेलेबल है, दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज। यू इमेजिन उस व्यक्ति लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, उस व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ पे कितना ज्यादा अफेक्ट होता है जब वह व्यक्ति बिना किसी जस्टिस के जेल में अपनी जिंदगी काट रहा है। ट्रायल इज नॉट बीन कंक्लूडेड। स्पीडी जस्टिस is everybody's fundamental right implicit in Article 21 of the Constitution. Cannot take it away. आप Article 21 की लैंग्वेज पढ़िए। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Constitution एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा है किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर, सरकार के ऊपर। क्या है नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट? यू सी, नो पर्सन, look at the mandate of the constitution, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. You do not have any right to take any person's life or personal liberty except according to procedure established by law. And that procedure established by law, our honorable Supreme Court has time and again laid down, it has to be non-arbitrary. It has to be an antithetic element to injustice. It has to be opposite of injustice. That is, it has to be fair. It has to be reasonable. It has to be non-arbitrary. It has to be justiciable. वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, वो भी फेयर और रीजनेबल और नॉन आर्बिट्ररी होना चाहिए। You can't put the person unnecessarily. And see, this is a very, very positive change that has been brought by BNSS 2023. Very positive change. सर दूसरा क्या? अब अगर आप दूसरा डिफरेंस देखेंगे तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, सुपरिटेंडेंट जो जेल का, जिसमें वह व्यक्ति लॉज्ड है एज अ प्रिजनर, जो सुपरिटेंडेंट है ऑफ दैट प्रिजन, ऑफ दैट जेल, दैट पर्सन हैज टू इन्फॉर्म, दैट सुपरिटेंडेंट हैज टू इन्फॉर्म द कोर्ट जैसे ही ये हाफ या 1/3 पीरियड उस अंडर ट्रायल प्रिजनर का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितना पॉजिटिव चेंज है टू ब्रिंग एक्सेस टू जस्टिस टू एवरीबडी। हाउ? आई विल टेल यू। मान लीजिए वह व्यक्ति इज एन इंडिजेंट पर्सन, ठीक है, एन एडवोकेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स लीगल एड, बट मान लीजिए उस व्यक्ति को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है कि वह व्यक्ति को 436 कैपिटल ए के अंतर्गत हाफ इम्प्रिजनमेंट के बाद छोड़ना था। तो 436 कैपिटल ए में तो व्यक्ति को खुद ही अप्लाई करना था। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन थी ही नहीं। आप सीआरपीसी में जाके देखिए 436 कैपिटल ए, द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल और द प्रिजन वेयर द offender is lodged as a prisoner
The superintendent of jail did not have any obligation to inform the court कि भाई इस अंडर ट्रायल प्रिजनर का हाफ सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, आप इस व्यक्ति को छोड़ने की प्रक्रिया कर लीजिए। नो, पर 479 सेज, एक तो 1/3 वाला एडिशनल क्राइटेरिया तो एडेड है ही, 479 कह रहा है हाफ फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स, या अगर 1/3 क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को इन्फॉर्म करना है कोर्ट। एक्सेस मिल रही है जस्टिस की, जिस व्यक्ति को अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति के भी हम राइट्स को हैम्पर नहीं होने देंगे। लुक एट द प्रोविजन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय 479 ऑफ BNSS 2020। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में व्हाट इज द पर्पस, और लेट अस से 479 पे सच कोई सवाल आ जाए, यू कैन डेफिनेटली से दैट द लेजिस्लेटिव इंटेंट is to provide better access to justice and protect the personal liberty of that individual. It is imposing a duty on the superintendent of jail, that is the authority under whose custody the person is, to inform the court that the person has undergone half or 1/3, as the case may be, of the maximum punishment and should be released on bail. Very clear legislative intent. और आंसर्स में जब आप लेजिस्लेटिव इंटेंट लिखते हैं, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फेच बेटर मार्क्स, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फेच मच बेटर मार्क्स। ये दो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। 479 में अगर आप देखेंगे एक और एडिशन भी हुई है, इट्स वेरी माइनर एडिशन, बट एक और एडिशन भी हुई है कि एक व्यक्ति के खिलाफ अगर मल्टीपल केसेस चल रहे हैं तो 1/3 वाला क्राइटेरिया या 1/2 वाला क्राइटेरिया आप उस ब्रैकेट में फॉल नहीं करेंगे। व्हेन यू रीड 479 यू विल गेट टू नो। But the two most pivotal changes that have come in 479 are related to first time offenders and the obligation, statutory obligation on the superintendent of jail to inform the court regarding the lapse of this maximum punishments, 1/2 or 1/3 as the case may be. 436 कैपिटल ए और 479 का क्राइटेरिया अभी भी वो सेम है कि जो ऑफेंडर जिस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज करा जा रहा है या जिसके लिए ट्रायल करा जा रहा है वो ऑफेंस डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं होना चाहिए। द क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम, दैट डेथ एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट दे आर एक्सक्लूडेड, मतलब ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए या डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, तभी आप 436 कैपिटल ए या 479 का बेनिफिट ले सकते हैं। A very positive change that has been brought by CRPC 1973. We are going to come up with different sessions regarding different provisions, sometimes even a cluster of provisions, as to what changes has been brought in the BNSS 2023 and what was there in CRPC 1973. What is the comparison between the two? How we have upgraded our justice system. Take care, and we'll meet very soon with another informative and a very fruitful session. Thank you so much.